Sonal, can you be the timekeeper? Probably she haven't joined Okay, yet. sir. Okay. So, She has Okay, joined. sir. She has joined. So Sonal would be the timekeeper for today's first session. Maybe in the second session we'll have another person volunteering. So our plan for today's session is we have presently four volunteers who have desired to present, and the first one is Ritu. She will be yes, sir. delivering a presentation, but it would not be a presentation on her subject. It would be a presentation on yesterday's key takeaways. So we shall begin with uh, a kind of recapitulation of key points that we discussed yesterday. Then afterwards, Shiv Prakash Kushwaha ji, is he there? Yes, sir. Okay. तो शिव प्रकाश जी आप तैयार रहिए. Then Preet Kamal, has she joined? Yes, sir. Okay. So Preet Kamal, she would be delivering next, and then Monali Chatterjee. Monali, are you there? Maybe she will. She said that she may take 5-10 minutes to join. But she's there in the list, and then I think Pankaj Yadav and Kamlesh have also raised their hand. So we shall have them also. So let us begin with Ritu and Dr. Sonal. There is no time limit for Ritu because she would be recapping yesterday's session. So she might take more than 2.5 minutes, but maximum of 5 minutes, Ritu. Eh? Sure, sir. Shall So I let begin? yes, please begin. Please begin. Okay, thank you so much, sir. Good morning, everyone. This is Assistant Professor Ritu from Department of English of SBDPG College, Dhampur. Today, I am going to share the experience of our yesterday's class on presentation skill by Professor Paved Talib, sir, in which my co-participant presented their topic within the given time of 2.5 minutes. And after each presentation, we received feedback and suggestion for further improvement. Here, I am going to share the five major outcomes or the takeaways of the session. First is the structure of our presentation. It should contains the introduction, the main body, and summary. Second is choosing content and selecting theme. Our theme should maintain the depth and the breadth as well. For which Sir gave the example of the English alphabetical letter T, which maintains the golden ratio of 1:1.6, which basically means our content should maintain a balance. It should be rich, neither too heavy nor too light. And as a teacher, we pick up the ability to overexpand the ideas. And sometimes when we are delivering so much information, sometimes it becomes difficult to deliver our lecture or the topic within the given time limit. But the compactness and crispness are the important component of a presentation. Third is after crystallizing the idea, the main issue comes of medium of expression. As we know that language is the important part of a presentation. So we should keep in mind that we have to maintain the fluency in whatever language we are going to present, be it Hindi, English, bilingual, or any other language according to the audience. And the fourth is using inductive logic rather than using deductive logic. In inductive logic, we move from specific to general. Uh, so we always should start our presentation by giving common example, so the audience can relate. This build interest in the audience, and which results in a good and better understanding. The last is related to the clarity of presentation. We should keep our presentation simple, for which context Sir gave the reference of a graduate student of Nalanda University. Their competency was tested by the method if they are able to teach whatever they have learned throughout their entire course to a
charvaha, a shepherd, a common shepherd. So after the completion of session, I implemented the suggestion and the technology suggested in the session. I try to I try to make my younger sister understand the topic of my tentative research proposal, which turns quite successful in spite being of her from another subject. So basically, this becomes relevant and in the technical presentation where the audience do not have that background. So the session was extremely fruitful, packed with wisdom and knowledge. We are hoping for further session. We are hoping and expecting such knowledge from the further lectures. Thank you so much, sir. Thank you, Ritu. That was a good job done. Thank you, sir. Now, before we move on to the next participant, can we have a brief, review of this presentation? And if she has missed out any point out of what we have discussed, I think anyone can point that out if there are some issues. Although she has covered it quite well, but even then, if you feel she has missed out anything, please point it out. Sir, I feel she did a very good job. Mm-hmm. And she covered all the points that you basically elaborated upon yesterday. Mm-hmm. For instance, the content was properly arranged. Mm-hmm. She went about it in a sequence. She gave examples about how she implemented your suggestions in trying to Oh, give me a second. In trying to help her sister understand her, research. And then there was clarity, there was eye contact. She gave a lot of examples and she was actually connected and she remembered. So it shows that she paid attention yesterday and she was very well versed. And also the golden ratio T that you talked about. I think for me, there was depth and ideas given the topic that she chose to present on today. So that's my two bits. I Thank you think so much. that was a good observation, Richa. Master, Yes, पासवान जी, कुछ आपको लगता है और ऐड किया जा सकता है समथिंग एल्स? शायद एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, है ना? वी हैव टॉक्ड अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, देन विजडम, है ना? तो आप किस लेवल पे अपनी बात पिच कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग और सिंथेसिस दोनों को साथ लेके चलते हैं, तब हमारा प्रेजेंटेशन विजडम ओरिएंटेड हो जाता है। देन वी शेयर आवर डिस्टिल्ड विजडम। तो दिस इज अनदर थिंग कि भाई अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज आवर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. So that is one point which I can add. So overall, I think I agree with Richa. You have done a very good job, Ritu. And Thank one you, of the sir. good thing about you is, as she noted, you are able to connect. And one of the reason for that connect was naturally the content that you had prepared. More important, yeah, in addition to that, I think your hand movements, especially the way you were using your non-verbal gestures, that also is a I mean, something which I noted specifically. Now, again, no, I'm not saying it just in the spirit of pointing out any flaw, but yesterday we did talk about, choosing the right kind of language and words. And one of the observations that we made on that account was that if we develop this ability to share our content using simple language, simple words, but appropriate words. For example, you said that, if we arrange the content like this, or if we start with examples, it builds interest. That was the word that you used. Now, I was just, reflecting on it. Can we use the word generates interest? Building takes place when we have already generated the interest, isn't it? So
That's what I was saying. Both the words are simple. Build is also simple. Generate is also simple. But which word would fit in actually? You know? So that is actually that decides our quality of thought process. We know exactly what we. In fact, I had a professor of English literature in AMU. He was an icon. In early 50s, he went to Oxford to do his BA. His name was Professor Asloob Ahmad Ansari, real iconic figure in campus. He passed away at a ripe age of 92 plus. And I was fortunate to listen to him, to interact with him. And one day he made this observation that, in fact, he was in a way taking a dig at me. We are from management, and in the MBA entrance test, we have objective type tests, MCQs as we call them. And one of the aspect on which the students are tested is, use of synonyms and antonyms. We all know that we have synonyms and antonyms in English language. And he said, what is this business of synonyms and antonyms? Synonyms especially. He said, किसी लफ्ज का कोई बदल नहीं होता है. जो लफ्ज बनाया गया है वो एक खास पर्पस के लिए है. अगर आप उसको अप्रोप्रिएट, तो मैंने कहा सर कैन यू एक्सप्लेन दिस. तो ही सेड कि अब आपको खुशी महसूस हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम हैप्पी. ठीक है, लेकिन अगर आप कहें आई एम फीलिंग जॉय, इज इट सेम एज फीलिंग हैप्पीनेस? Is joy synonym of happiness? He said, if you say, I'm feeling blissful, is it same as joy? So more or less, yeah. तो he said कि नहीं, कोई ऐसा ये नहीं है कि साहब हैप्पीनेस का सिनोनिम जॉय है. जॉय जहां यूज करेगा वो सिचुएशन अलग है. वो इंटेंसिटी देखिए दिखा रहा है. इट्स शोइंग द इंटेंसिटी. जॉय इज ए मच हायर फीलिंग than happiness. Yeah, it's Bliss is even higher than joy. I'm feeling ecstatic. That's a different level altogether. And I was wisdom जो है वो मैं कह रहा था कि profound होती है, simple होती है, और it cuts across. I met a professor of Hindi literature. He was professor of Hindi literature in Allahabad University. We met in a conference and a kind of discussion forum. So उन्होंने बिल्कुल यही बात कही, कहने देखिए पर्यायवाची कुछ नहीं होता है. मैंने कहा आप भी कोई सर मिसाल अगर दें. तो उन्होंने कहा कि देखिए नाली में पानी बह रहा है, क्या आप कह देंगे ये जल बह रहा है? तो देखिए जो प्योरिटी का एक फीलिंग जल में आती है या नीर में आती है, वो पानी में नहीं आती है ना. तो हम अगर पानी को जल को कहेंगे वो पानी का पर्यायवाची है, तो क्या ये सही है? So this is, I think we need to understand that every word has its own texture, nuances, and appropriateness of the occasion in which it should be used. And if we can pick up that ability, that is, and words gradually open up for us. तो वो तभी होता है जब एक्चुअली ये फिनोमिना हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे. और ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रांसिस बेकन का जो कोट है उसमें बहुत बढ़िया अच्छी बात लिखी है. उन्होंने ये कहा कि रीडिंग मेक्स ए नॉलेजेबल मैन. कॉन्फ्रेंस, जैसे हम लोग वी आर कैरिंग आवर डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो यस, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, रीडिंग से ही आती है वो, लेकिन एग्जैक्टनेस थॉट प्रोसेस में राइटिंग से आता है. एंड बिकॉज मेनी टाइम्स वी डोंट राइट. आप पहले हम लोग कुछ नहीं था तो अपने सगों को खत लिखते थे. अब तो व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज भेज दिया जाता है. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट वी जनरली राइट.
तो वो एग्जैक्टनेस थॉट प्रोसेस में नहीं है। पहले लोग डायरी लिखा करते थे ना, डायरी राइटिंग वाज अ वेरी वेरी पैशनेट एक्टिविटी, और बड़ा छुपा के रखा जाता था कि कोई और ना पढ़े उसे। तो I think all those things used to train our mind to think exactly and using appropriate words. चलिए, तो I think Ritu, well done again. You have done a very good job. I am very happy with your performance. Thank you so much, Both sir. my pleasure. Now Shiv Prakash Kushwaha साहब, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आप अपना प्रेजेंट शुरू कीजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के बीच, Rest of you may be on the mute mode, please. आज हम आप लोगों के बीच केमिस्ट्री सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, प्लीज स्टार्ट। जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिव प्रकाश सिंह कुशवाहा, सहायक आचार्य श्री रसायन विज्ञान श्री बलदेव पीजी कॉलेज, बड़ा गांव, वाराणसी। आज आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फेज इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। समय को देखते हुए पूरे फेज इक्विलिब्रियम को तो नहीं, लेकिन इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द फेज इक्विलिब्रिया। इसके अंतर्गत हम 2-3 बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे डिफिनीशन हुआ और कुछ इसके बेसिक टर्म्स। चलिए, जो अगर डिफिनीशन की बात करें, लेकिन डिफिनीशन की बात करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यह बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हम फेज इक्विलिब्रिया पढ़े क्यों। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये प्रश्न जरूर आता है कि ये टॉपिक पढ़े क्यों, क्यों पढ़ना इसका जरूरी है, इसका कुछ यूज है या नहीं है ना। इन सब का उत्तर हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। क्या कभी आपने पिघलते हुए बर्फ को देखा है? बर्फ के टुकड़े को जरूर देखा होगा। यदि देखा है तो सोचा भी होगा क्या कि बर्फ पिघलता क्यों है? क्या पिघलने की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं? अगर इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं हम, तो हमें फेज इक्विलिब्रिया पढ़ना पड़ेगा। चलिए डिफिनेशंस की बात करते हैं। फेज इक्विलिब्रिया refers to the balanced coexistence of different phase within a system at specified condition। यानी किसी भी सिस्टम में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे मिनिमम 2 फेज का एक साथ रहना ही क्या कहलाता है? फेज इक्विलिब्रिया कहलाता है। जैसा कि हमने आपसे बात किया कि बर्फ के टुकड़े का पिघलना, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो बर्फ का टुकड़ा अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो पिघल के पानी बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर हम डाउन कर दें तो आप देखेंगे कि एट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है अगर मेंटेन करते हैं तो वाटर और बर्फ का एक संतुलन बन जाएगा, जहां पे आप देखेंगे कि कुछ पार्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट आपका आइस दिखेगा। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। थैंक यू। थैंक यू शिव प्रकाश जी। प्रीत कमल नाउ, प्रीत कमल। Yes, sir. Can we start, sir? Yes, please do. Hanji. Good morning to all participants. Good morning, sir. Myself Preet Kamal. I am from Government College, Machhiwada, Ludhiana. My department is Commerce. As I am teacher of Commerce, so I want to discuss my topic on commercial law. So the commercial law consists 2 words. One is commercial and another is law. So first of all, I want to convey you what is commercial. Commercial is related to commerce. So commerce का मतलब क्या है? Commerce is combination of trade and aids to trade. Now the law means the principle and rules which established by an authority. So in commercial law there are various acts made, like Indian Contract Act 1872,
and some special acts are there like indemnity, guarantee, bailment, pledge, and agency. So the next act is Consumer Protection Act 1986. So these all are the commercial law act related to the commercial law. So I want to discuss one specific Indian Contract Act, some concept of Indian Contract Act 1872. So the contract means the legally binding agreement. Now, what is agreement? Agreement is when one party offers something and another party accept that offer. So offer plus acceptance makes an agreement, but agreement is specifically not a contract. Contract means that agreement which is enforceable by the law. So enforceable, how we make agreement in, how we convert agreement into the contract. So there are certain essentials which make agreement into the contract, which is mentioned under section 10 in Indian Contract Act 1872. So I want to discuss these essentials now, which are mentioned under section 10 of Indian Contract Act 1872. So the first is offer and acceptance. The first thing which we make in order to make a contract, that is offer and acceptance. One party offer, another accept the offer. The second is intention to create legal relationship. So the two parties must have an intention to create legal relationship. Like whenever there is a contract between husband and wife, then if that is in the written form, then we can say there is intention to create legal relationship. But if that is informal contract between an husband and wife, we can't say that there is an intention to create legal relationship. The third point is lawful consideration. Now let me explain what do you mean by consideration. Consideration is something in return. ठीक है, सो जो हम इन रिटर्न पार्टीज एक दूसरे को देती है वो होती है कंसिडरेशन. सो इसके साथ कंसेंट जो है पार्टीज की फ्री होनी चाहिए, पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की. लाइक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ओनली मेजर कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. So these all are the essential which make agreement into the contract. Thank you so much. Thank you, Preet. Monali Chatterjee. Yes, sir. Am I visible and audible, sir? You are not visible. Yes, now you are visible. Yes. Can I start, sir? Yes, please. Please put down your electronic hand. Hello and good morning. My presentation is on Lord of the Flies as a contemporary novel. Man is a beast. These are the words given by William Golding, who has been the author of this novel called Lord of the Flies. It is a classic, a modern classic, and it talks about schoolboys who had been put into an isolated island just because they had to be rescued from their adult parents during the Second World War. The children were very happy with the kind of virgin island that they had landed in. There was a fight for authority, but once the authority was established, rules had been set up and there was order in the island. But there had been a competition, so the ruling party was challenged constantly by the opposition party, again a group of children. And once this happened, they accidentally killed one of the children. And then killing became a habit until an adult had to actually come into the island to rescue the children even from the fighting that was going on within the island. The Lord of the Flies is a contemporary classic in the sense that many children talked about a beast that would kill them, annihilate them. But Golding proposed that it was during such a conflict that the beast in us gets aroused. Roosevelt always thought that man is a noble savage, whereas Hobbes proposed that man is competitive and hence violent. So the entire importance of the novel is that the beast in us should not be roused, it should be killed. We should be collaborative rather than just competitive. And this is the submission that Lord of the Flies makes in the novel. And that is why it is extremely important as a text to the academic fraternity. So my talk is over. Thank you. Thank you.
कमलेश कुमार। सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। मैं कमलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर SDR PG कॉलेज डोभी जौनपुर, जो कि सर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक, मैं कॉमर्स से सर हूँ, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो सर XY थ्योरी है, मोटिवेशन की थ्योरी है जो ये बेसिकली। तो ये जो XY थ्योरी है ये जो डिपेंड करता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, किस वेरियस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सर, तो वेरियस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप के एम्प्लॉय भी होते हैं। तो उन एम्प्लॉय लोगों से काम करवाने के लिए आप किस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, यही थ्योरी बताए हैं डगलस मैकग्रेगर साहब ने। ठीक है सर, तो हम XY थ्योरी के बारे में बताते हैं। जो XY थ्योरी है सर, वो डगलस मैकग्रेगर जी ने 1960 में दिया था, जो कि एक प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं। और जो सर, इससे पहले मैं मोटिवेशन के बारे में बताना चाहूंगा, मोटिवेशन का डेफिनेशन, कि मोटिवेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल स्टिमुलस होता है सर, जो किसी भी इम्प्लॉय को कार्य करने के लिए इनकरेज करता है और तथा उसे कार्य पर रोके रहता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है सर। अब देखते हैं एक्स थ्योरी क्या कहता है। एक्स थ्योरी सर जो है वो निगेटिव थ्योरी होता है, जिसे निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। जो आलसी टाइप, एक्स थ्योरी में एम्प्लॉय जो होते हैं वो आलसी टाइप के होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ जीते रहना चाहते हैं। इस प्रकार से ऐसे लोगों से कार्य सर, हाँ, Yes. ऐसे लोगों से सर काम करवाने, प्लीज कंटिन्यू। ऐसे लोगों से सर काम करवाने के लिए उन्हें डराना धमकाना पड़ता है, उन्हें पेनाल्टी भी दिया जाता है उनके गलत कामों के लिए। और ये सर जो एक्स थ्योरी है वो लीडरशिप के ऑटोक्रेटिक थ्योरी पर बेस्ड। ऑटोक्रेटिक थ्योरी मतलब निराशावादी सिद्धांत में जो होता है वो इम्प्लॉइयों को सर उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है उनके कामों के लिए, वो चाहे जैसा काम करें, और ना ही कोई उनका रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ना ही पॉलिसी अगर कोई मेंटेन की जाती है तो उसमें भी कोई इनका रोल नहीं रहता। तो इस काम करने के लिए ना थ्रेट दिया जाता है, इन मतलब भय दिख पड़ते हैं को। तो अब सर देखते हैं हम वाई थ्योरी। वाई थ्योरी सर जो है वो पॉजिटिव थ्योरी होता है, वो आशावादी सिद्धांत जिसे कहते हैं। और ये जो थ्योरी है सर वो लीडरशिप के बेस्ड है। जी मैम, ये डेमोक्रेटिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। और डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक सिद्धांत। प्रजातांत्रिक सिद्धांत में एम्प्लॉइयों को सर एक पूरी आजादी होती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने मालिक लोगों से कुछ भी इनिशिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और जो वाइट थ्योरी होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो काम करने के लिए, और ये कार्य में रुचि भी दिखाते हैं, जो कि एक्स वाले जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कार्य करने के लिए। जी मैम। कमलेश, please wind up now. Your time is over. थैंक यू सर। Okay. Thank you very much. Now Hashim Raza. Hashim, जी सर। are you on? Hashim sir, please put down your electronic hand. ओके सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी पेशकश का मौजू सर, सुन रहे हैं सर आप? हाँ, जस्ट मिनट। कमलेश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, नाउ यू कैन स्टार्ट। मैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम रजा, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा अरबी, पटना यूनिवर्सिटी, पटना, बिहार। आज मेरी पेशकश का मौजू है इमरुल कैस के शायरी की खुसूसियात। लेकिन उसकी खुसूसियात पर बात करने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप लोगों के सामने उसकी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात और उसके शेर को समझ लें, ताकि हमको उसकी खुसूसियात को समझने में आसानी हो जाए। इमरुल कैस दौरे जाहिली का एक अजीम शायर था, बल्कि तमाम शायरों का इमाम और कायद था। उसे अल-मलिकुद दिल्लील यानी गुमराह बादशाह और जुल्क़ुरूह यानी जख्म वाला भी कहते हैं। उसकी पैदाइश 500 ईस्वी में हुई। एक रईसज़ादा की तरह उसकी परवरिश हुई। जब जवान हुआ तो उसके अंदर बहुत सी गलत आदतें आ गईं, जिसकी वजह से उसके बाप ने अपने घर से उसे निकाल दिया।
नतीजा ये हुआ कि एक बार वो एक शराब की महफिल में अपने दोस्तों के साथ था, किसी ने आकर के खबर दिया कि आज तेरे बाप का कत्ल हो गया है। उस वक्त वो सिर्फ इस खबर को इस वजह से अपने दोस्तों से छुपा लिया ताकि शराब की महफिल फीकी ना पड़ जाए, और सिर्फ इतना कहा, ज़य्यानी अबी सगीरन व हम्मलनी दमहु कबीरन ला सहवा अल-यौम व ला सुक्र गदन अल-यौम खम्रुन व गदन अम्रुन। इसका माना यह हुआ कि मेरे बाप ने मुझे बचपन में घर से निकाल दिया और जवानी में मेरे ऊपर अपने खून का बोझ डाल दिया। आज होश नहीं और कल नशा नहीं। अल-यौम खम्रुन, आज शराब की बात होगी, व गदन अम्रुन, और कल मामलात की बात होगी, यानी बाप के बदले की बात वो इसमें कर रहा है। आखिरकार उसने अपने बाप के कातिलीन का बदला लिया और खुद 540 ईस्वी में उसकी वफात हो गई। अब हम यहाँ से कोशिश करेंगे ये कि उसके कलाम में जो इम्तियाजी खसूसियात पाई जाती हैं उस पर बात करें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो एक जाहिली दौर का बहुत बड़ा शायर था, तो उसके यहाँ उसके कलाम में उम्दा बंदिश और भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल बहुत कसरत से पाया जाता है। हुस्न तशबीह, हुस्न वस्फ और इस्तिआरा, किनाया, मजाज और तशबीह में जो उसने मिसाल कायम की है वो दूसरे शोरा के यहाँ शायद ही कहीं को मिले। जैसे कि इमरुल कैस के मुअल्लका का पहला मतला अगर देखते हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों से अपने महबूबा के दीवार पर थोड़ी देर ठहर कर रोने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहता है, क़िफ़ा नब के मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बेसिफ़्तिल लेवा बैन दखुली व हौमली। चूंकि हमने पहले बताया कि उसके यहाँ भारी भरकम अल्फाज मिलते हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये कि डिफिकल्ट वर्ड्स को हल कर लें ताकि शेर को समझने में आसानी हो जाए। हाशिम, तुम्हारा योर टाइम इज ओवर प्लीज, so you have to wind up. Thank you. Okay, now Richa. Yes, sir. Richa, you also please put down your electronic hand. Right, sir. Right. I'm sorry. Okay. Shall I begin? Yes, please. Okay. Good morning. I'm Richa Chand from the Department of English at NSN PG College. And today I would like to take this opportunity to talk about the impact of war on society in general and women and children specifically. Now, war and conflict are terms we're all too familiar with in today's day and age. But do we ever really ponder about how the economic and the judicial aspects of war are often prejudiced over their personal, psychological, and gender-specific aspects? Now, the nature and ethos of war in today's in today's era has changed drastically over the years. If we compare to the ancient times when war was essentially mostly fought on the battlefield among battle-ready armies and battle-trained armies who would fight from the first light of the day and end their violent endeavors at sundown, at twilight, to allow for tending to the wounded and the dead, essentially. But in contrast, today, the relentless nature and the inherent greed of the warring factions, the communities, the nations, basically has removed any and all human considerations. For instance, the Gaza and Israel conflict, or the undercurrents of unrest in our very own country, the sheer monstrosities are being justified in the name of, righteous inheritance or ownership. Ironically, one of the greatest war epics, the Mahabharata, lays emphasis on peace and sustainability. Now, I'm sure we're all peace-loving individuals. We love peace and we abhor war and conflict. But is there anything that we actively do to address this common issue in our day-to-day lives? Let's just look at our home units, at home fronts. Sometimes it's too much salt. Sometimes it's, being over-ambitious or aspiring to love or to have a career, which usually brings upon the wrath of the community on the women's bodies and psyche. Now, a family dynamic, which is the very root of a society, consists at its very basic of a man, a woman, and a child. And everything that plays on within this dynamic directly influences the society we live in, we exist in, and that we leave for our progeny. Children basically have a tender psyche, and they learn. And they learn. Time is. I have 30 Yes. seconds. No, you don't have.
Okay, I'd just like to end very quickly quoting Mandela, where he says that we owe it to our children, the very innocent, the most vulnerable citizens of any society, to, give them a life free from violence and fear. Thank you. Okay, so I think we have had enough number of participants. So let us analyze. In the next round, I've got some volunteers. So Kirti Sharma, you be ready. Ravi Pratap, Poonam Bajpayee, and Akshay Kumar, and then SBC Singh Sab. So we shall have these speakers in the next round. So let us analyze the speakers whom we have listened to. And we have had very good performances. I'm very impressed overall by this quality, the quality of this round. Starting with Shiv Prakash Kushwaha Saab, who talked about, I mean, his presentation had some very good positive things for all of us. एक तो जैसे इनकी खूबी ये थी कि we have talked about how to create an engagement with the audience, है ना? तो he demonstrated one method. शिव प्रकाश जी आप हैं? Are you there with us? I'm not able to see you. Yes, sir. Please switch on your video. Yes, now I can see you. Okay. So I was talking about your presentation, some of the positives, and one of the positive which I noted, and again this has general applicability. We can we can create engagement by raising questions. है ना? So this was the style that you demonstrated all through your presentation. You were raising questions कि भाई आपने देखा है बर्फ को, आपने देखा है उसको पिघलते हुए, and all that. So this is a very good way to create engagement. एक और बात जो मैंने आपकी बात में देखी कि आपका स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन था, जो कल हम लोगों ने बात की, तो आपने बहुत क्लियर टर्म्स में बताया कि भाई ये जो इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं, तो ये इसमें हम क्या करेंगे और कितना उसका what will be the coverage of this. So this was the second point which was good in your presentation. The third point which was good in your presentation was your demeanor, your पूरे जो आपके हाव भाव थे, बहुत एक you came out as a very pleasant person who smiles quite often and maintains a very jovial posture, है ना? तो ये आप में एक और मैंने खास बात देखी. तो अब कहाँ आपको थोड़ा काम करना है, मुझे लगता है ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें और थोड़ा अगर इसमें बेहतरी हो जाए तो और अच्छा होगा. जो आपके फोनेटिक्स वाला इशू था, जैसे हम कल बात कर रहे थे जा और जा साउंड्स में, आपके केस में वो सा और शाह साउंड्स के केस का जो है क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता. तो डिस्कशन जैसे फॉर एग्जांपल या कंडीशन, है ना? तो अगर इस पे थोड़ा सा आप गौर कर लें, और हो सकता है कि उस गौर करें तो बेहतरी हो जाए. तो जरूर सर. तो अदरवाइज योर प्रेजेंटेशन वाज अ गुड प्रेजेंटेशन. बहुत मुझे अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, है ना? थैंक यू सर. प्रीत कमल मैम का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था. मुझे you, लगता है कि उनका बहुत क्लैरिटी से, उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी से अपनी बातों को एक्सप्लेन किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फीचर्स को बताया. थोड़ा सा मुझे लगता है आपने एक चीज, वी हैव बीन गिविंग फीडबैक इन टर्म्स ऑफ वेरियस सीज. तो जैसे कल हमने क्लैरिटी की बात की, हमने क्रिस्पनेस, कॉम्पैक्टनेस की बात की, हमने कंटेंट रिच होने की बात की. तो आपके केस में मैं कहूंगा कि आपने एक सी इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, भूमिका बनाना. तो आपने भूमिका तो अच्छी बनाई, लेकिन थोड़ा सा उसको लगता है स्ट्रेच कर दिया आपने. इसलिए जब आखिर में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समेटने पे आई तो उस वक्त आपका वक्त खत्म हो गया, है ना? तो थोड़ा ये एक जजमेंट करना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप तमहीद बांधते हैं, भूमिका बनाते हैं किसी भी चीज की, लेकिन अगर उसको थोड़ा ओवरडू किया जाए तो शायद प्रॉब्लम भी हो जाए, है ना? और दूसरा, आपने मिसालें भी आपके पास थी, बहुत अच्छी मिसालें थी कि भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, और आपने सोशल एरेना से
मिसालें दी कि भाई हस्बैंड वाइफ के एग्रीमेंट होता है, तो वो सब बहुत अच्छा था। मुझे लगता है आपका ओवरऑल जो अप्रोच था वो डिडक्टिव लॉजिक बेस्ड था, है ना? तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा कि क्या इंडक्टिव मेथड से भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट उठाइए कहीं जो हुआ हो और उसके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिएगा शायद उससे और बेहतर एंगेजमेंट हो जाए। बट आई एम वेरी Yes, sir. इम्प्रेस्ड बाय योर ओवरऑल क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, योर एबिलिटी टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट। आपके भी केस में असल में एक हम लोग हम इंडिया में जब रहते हैं ना, तो हम एक्चुअली इट इज लाइक हैविंग 29 नेशंस 30 नेशंस इन वन कंट्री, तो हर जगह जो है डिक्शन और थोड़ा जो अंग्रेजी फॉर एग्जांपल बोल रहे हो तो, लेकिन मदर टंग इन्फ्लुएंस डोमिनेट करता है। Yes, sir. तो जैसे कश्मीर के लोग हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज में अंग्रेजी बोलते हैं। आपके केस में थोड़ा जैसे ऑफर है ना, तो ऑफर पूरा वो नहीं खुल के आ रहा है ना? तो जस्ट बी मोर कॉन्शियस ऑफ योर ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस, स्पेशली जब आप व्हेन यू एड्रेसिंग cosmopolitan audience beyond your state, maybe a good diction will be an added advantage to you. But otherwise, Yes, your presentation was very good. I am impressed by your performance. Now, Monali Chatterjee, where are you? Yes, sir. You're there? Mhm. Yes, sir. Can you switch on? Yes, yes. तो देखिए मोनाली, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द कमांड ऑफ लैंग्वेज दैट यू हैव. I was yesterday talking about that river-like flow. So you actually buttressed my point today through this example of yours. So you have very good command over language, and I'm very impressed by your fluency with which you delivered the presentation, है ना? और आपका प्रेजेंटेशन जो है वो इंडक्टिव लॉजिक को भी एक्सप्लेन करता है ना? कि यानी हम जो कल बात कर रहे थे ना कि वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो आपने उस नॉवेल के सहारे एक जो बड़ा पॉइंट था कि देयर इज अ बीस्ट इन ऑल ऑफ अस, है ना, वो एक द कंक्लूडिंग पॉइंट था ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो अब डिडक्टिव लॉजिक जो लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो कहते तो हम वो यहाँ से बात शुरू करते कि साहब इंसानी फितरत को देखा जाए तो हमारे अंदर, सब के अंदर एक शैतान छुपा हुआ है, और फिर आपने उसको कंक्लूजन को एंड में दिया है ना। तो दिस इज ए इलस्ट्रेशन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। तो ओवरऑल आपका भी डेमिनर बहुत अच्छा था और एक प्लेजेंट पोस्चर यू वर मेंटेनिंग। थोड़ा मुझे लगता है कि आपकी नेचुरल टेंडेंसी आई कांटेक्ट बनाने की नहीं है ना, या आप आई डोंट नो व्हाट इज इट, लेकिन जैसे अब आप इस वक्त कांटेक्ट कर रही हैं, आई कांटेक्ट, है ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आपकी आंखें आधी बंद हैं and you are not actually connecting through your eyes. And eyes, as we say, are one of the most powerful organ that God has blessed us with, है ना? Somebody, मुझे पूरा शेर तो याद नहीं आ रहा, मैं कहा कि आंखें ज़बा नहीं है मगर बेज़बा नहीं, तो आंखें भी आदमी की बोलती हैं। तो अगर आप और इस पे कॉन्शियस रहें तो थोड़ा आपका कनेक्ट बेहतर हो जाएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ए पर्सन, इनफैक्ट बहुत मुझे ऋचा का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और हाशिम साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। तो मतलब देखिए, जब मुझे लगता है कि टीचर को किसी टूल की जरूरत नहीं होती है ना। आजकल पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस वगैरह का जमाना है और बहुत उससे लोग, लेकिन असली हमारे टीचर ये कहते थे कि टीचिंग इज ए माइंड एंगेजिंग प्रोसेस, है ना। तो अगर हम अपने बात से दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको, देन वी आर ए गुड टीचर। तो उसके लिए आइडियाज और एक्सप्रेशन, दो ही चीजें जैसे हमने कल बात की थी। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आज जो भी प्रेजेंटेशन हुए, चाहे रितु का हो, शिव प्रकाश का हो, प्रीत मैम का हो, या मोनाली का हो, या हाशिम है, ये ऋचा हैं, तो they all demonstrated that ability to engage people intellectually.
Sir, तो a question है, can I ask? Sir, sir, I am a professor of English. Abhi, my question is that being a professor of English, those who, now this is a mixed audience, but those who come from a language background, no matter what language, whether it is Hindi, Urdu, English, no matter what language they come from, they expect that there has to be a certain eloquence in the language. जैसे आपने कल बताया था कि लैंग्वेज शुड डांस ऑन द टंग, तो इलोक्वेंस भी होना चाहिए, उसके साथ साथ सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए. आपने बताया था कि कल कोई किसान भी समझ जाए, कोई कॉमनर भी समझ जाए, तो मैं वो बैलेंस कैसे मेंटेन करूं अपने प्रेजेंटेशन में? दिस इज माय क्वेश्चन. असल में ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका जो है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में दो तरह के ट्रेडिशंस हैं स्कॉलरशिप के, है ना. एक स्कॉलरशिप का ट्रेडिशन जो है वो आपको सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाता है ना. जैसे हम मान लीजिए विजडम की बात करें तो गांधी जी की वो स्पीच, जब उनको क्वेश्चन किया गया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, है ना, तो उनके अपने साथी उनके अगेंस्ट हो गए और उसको, उस फैसले की मुखालिफत की, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल, जो उनके बहुत करीबी लोग थे. तो उन्होंने जब उस डिफिकल्ट मौके पे अपनी बात को रखा तो देखिए कितने सिंपल अंदाज में रखा. उन्होंने कहा, यस आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर एनी कॉज बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू किल फॉर एनी कॉज, है ना. तो देखिए कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात थी. तो ये सिंप्लिसिटी में प्रोफाउंडनेस हासिल करना, यही एक खूबी है. और आपका हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि और जो आपने सवाल रेज किया कि हम कैसे एंगेज करें ऑडियंस को. अब जैसे हमने अभी अगर मिसाल लें तो हाशिम रजा साहब को सुना, है ना, तो आपसे तो कम लेकिन थोड़ा उनका ज्यादा मुझे लगता है कि जो उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से या उनकी अपनी एजुकेशनल ट्रेनिंग के हिसाब से सही था. लेकिन फॉर एग्जांपल इस ऑडियंस को अगर आप कहें कि उसकी शायरी में इस्तारा भी है या तशबीह है, तो इस्तारा और तशबीह जो है वो यहाँ कितने लोग समझ पाएंगे, है ना. तो लेकिन अगर उसी का एक इंग्लिश इक्विवेलेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, एनोलॉजीज की बात कर रहे हैं या हम सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं, तो शायद बात जो है वो ज्यादा वाजे हो जाए. तो ये जजमेंट करना. अच्छा, फिर ऑडियंस भी अलग अलग तरह के होते हैं. एक आप कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन कर रही हैं जहाँ पे इंग्लिश की बैकग्राउंड के ही ऑडियंस हैं, तो वहाँ आप अगर सिंबोलिज्म या इसको यूज कर रहे हैं, एनोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत सही है. तो यहाँ हमें हर वक्त ये जजमेंट करना पड़ता है कि माई कम्युनिकेशन इज फॉर द ऑडियंस, है ना. हमारे पीटर ड्रकर एक मैनेजमेंट के गुरु हैं, वो ये कहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज यू ओनली अटर, ओनली ऑडियंस makes it a communication. So my utterances are only utterances if it is not received by the other person. तो अगर हम इसको जजमेंट को तो मैंने जैसा आपसे कहा कि जो हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप का ट्रेडिशन ये है कि वो मुश्किल की तरफ ले जाता है. बड़े ज्ञाता हैं, कोई बात समझ में नहीं आई, है ना, तो हम ऐसे भी ऑथर्स को देखते हैं. आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत डिफिकल्ट रीड होती है, उनको पढ़ना भी एक अपने आप में काम होता है, और बहुत फिर हल्के हल्के उनकी मीनिंग जो है खुलती है हम पे. हमें इस तरह के टीचर्स भी मिले अलीगढ़ में. हिस्ट्री के ही बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोफेसर इरफान हबीब, ही वाज माय टीचर. लेकिन क्या था कि हमें अपना लेवल उठाना पड़ता था. अगर हम उनको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ के उसकी बैकग्राउंड को समझ के जाएं तो इट वाज अ वंडरफुल क्लास. लेकिन उसके बरक्स एक हमारे टीचर थे प्रोफेसर एम.ए. अलवी, तो वो इतना सिंपल वे में चीजों को एक्सप्लेन कर देते थे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है.
एक्चुअली ही वाज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो, ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने काम किया था और हमारे यहाँ पे ड्रामा क्लब के वो बहुत साल तक इंचार्ज रहे। तो वो पूरा ड्रामा से क्रिएट कर देते थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाते, और सारे कैरेक्टर्स जो थे वो दे यूज टू कम अलाइव। तो अब ये है वही है अवाम और खवास का फर्क है, कॉमनर के लिए और एलिट्स के लिए आप कैसे टेलर करें कम्युनिकेशन को अपने, बट यू कैन डू इट। और उसके लिए आपको कहीं शायद टेक्स्ट पहले से लिखना होगा, हर लफ्ज पे गौर करना होगा, खास तौर से अगर 2.5-3 मिनट का प्रेजेंटेशन है। तो yes, Thank you, sir. but I'm impressed by your especially flow, the understanding, और ओवरऑल मुझे लगता है लैंग्वेज के लोगों को थोड़ा एडवांटेज होता है, चाहे वो हिंदी के हों या अभी हमने इनको हाशिम को सुना, क्योंकि दे आर ब्लेस्ड विद गुड लैंग्वेज बेस, और उससे that acts as a good vehicle to communicate their ideas. कमलेश जी ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की बात की, तो आपने भी अपने आइडियाज को एक्सप्लेन किया और अच्छे से किया, लेकिन आपने भी वही डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल किया प्राइमरीली, है ना। तो अब आप अगली बार मेरे आपको चैलेंज ये होगा कि आप बात ये कीजिए, 2 मिसालों से बात कीजिए जिससे एक से थ्योरी एक्स एक्सप्लेन होती है और एक से थ्योरी वाई एक्सप्लेन करती है। आजकल यूट्यूब वीडियोस भी बहुत से अवेलेबल हैं, आप उनमें से कुछ लीजिए और फिर कहिए कि भाई इसमें क्या अजम्पशन है, इसमें क्या अजम्पशंस हैं, है ना। तो अगर आप ये डिडक्टिव लॉजिक के बजाय इंडक्टिव लॉजिक को यूज करेंगे तो मुझे लगता है आपकी बात और ज्यादा आपका कनेक्ट और इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा लैंग्वेज का इशू आपके केस में भी है, खासतौर से मैस्कुलिन और फेमिनिन जो थ्योरी होता है, अच्छा थ्योरी होता है तो होती है। तो ये छोटी छोटी इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप और या आपके कभी कभी होता है, हम लोग उर्दू में कहते हैं तकिया कलाम, पेट फ्रेजेस, कुछ चीजें हम लोगों को, जैसे आपके केस में ठीक है सर, ठीक है, तो ठीक है इज योर तकिया कलाम। तो थोड़ा सा अगर आप और ये कब होता है कि जब हमारे कम्युनिकेशन में वो फ्लो नहीं होता है, जो हमने अभी मोनाली मैम के प्रेजेंटेशन में देखा या और हमारे, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वर्क ऑन द फ्लुएंसी ऑफ योर लैंग्वेज, है ना। तो दैट विल फर्दर मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। ओवरऑल देयर इज अ गुड टीचर इन यू, और आपने थ्योरी को पढ़ा है, लेकिन अब थ्योरी को कैसे दूसरों तक पहुंचाना है उसके लिए we need to have a more creative so one of the C of communication is creativity, है ना। तो इसको भी कहीं लिख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमने बहुत से अब तक C's की बात कर ली। मोनाली, इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट यू टू keep recording the key points that we are learning, so because tomorrow I will request you to present a summary observation of today's session. Yes, sir. तो वन ऑफ द सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रिएटिविटी। कैसे हम अभी मतलब जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल दूं, आई वाज कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप इन नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एएमयू एंड देयर वाज अ रिसर्च स्कॉलर, व्हेन आई आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, है ना। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती है हु एम आई के जरिए आई हेल्प पीपल टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन सेल्फ। तो दिस फेलो वाज अ हॉर्स राइडर, है ना। तो अब जब पीएचडी में आए तो ही sort of put a temporary stop on his hobby which he had as a student. So he used an expression, ever since I am in PhD I have jumped out of horse riding. तो अब मुझे इतना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन लगा, देखिए हॉर्स राइडिंग में जंपिंग जो है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लोग यूज करते हैं, बट ही यूज्ड इट वेरी डिफरेंटली, जंप्ड आउट ऑफ हॉर्स राइडिंग। तो ये एक क्रिएटिविटी है कि आप यू आर रूटेड इन द ग्राउंड रियलिटीज बट यू कैन थिंक अबव आल्सो। तो हमारे एक ऑथर हैं प्रदीप खांडवाला साहब, उन्होंने लिखा है कि क्रिएटिव पर्सन इज वन हुज हेड मे बी इन द स्ट्रेटोस्फीयर बट हिज फीट आर फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड।
यानी जड़ों से जुड़ा भी रहे और हवा में तैरता भी रहे, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो वी ट्राई टू स्ट्राइक एट। तो कमलेश जी, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और लैंग्वेज के फ्लो पे काम करें तो अच्छा रहेगा। हाशिम रजा साहब, आपका मैं इंटेलेक्चुअल बेस को बहुत एडमायर और अप्रिशिएट करता हूँ, और आपने जो ये शायर हैं इमरुल कैस, उनका बहुत अच्छे से बयान किया, उनका लाइफ हिस्ट्री को भी बयान किया, उसके ज़िंदगी के हालात को भी बयान किया। लेकिन मैं फिर वही बस आपसे अर्ज करूंगा, आप अरबी के टीचर हैं जाहिर है, तो आपके लिए और भी वो वाली लैंग्वेज को हासिल करना जो यहाँ के ऑडियंस के लिए सूटेबल हो। ओवरऑल मेरे ख्याल से 90% ऑफ द टाइम यू वर एबल टू कम्युनिकेट, लेकिन कहीं कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि थोड़ा आपका मुश्किल हो गया, और उसको आप सिंपल अल्फाज में बात अपनी और पहुंचा सकते हो। खासतौर से जो टर्म्स का मैंने इशारा किया, इस्तारा या तशबीह, जी सर। इनको इनके लिए अगर और दूसरे अल्फाज या अंग्रेजी इक्विवेलेंट यूज कर लीजिए या हिंदी का यूज कर लीजिए कि भाई हिंदी में से ये कहते हैं, तो जी मेकिंग सर। दिस जजमेंट व्हाट विल क्लिक विद ऑडियंस, वो। बट आई एम वेरी हैप्पी विद योर। अच्छा, एक दो चीज मैं देख रहा हूँ, जैसे मोनाली आपके भी केस में है और हाशिम जी के केस में भी, थोड़ा हमें लाइट कॉम्बिनेशन को भी देखना पड़ता है। आपके जैसे ज्यादा बैकग्राउंड में लाइट है दोनों के केस में, तो उससे चेहरा जो है वो बहुत विजिबल नहीं नजर आता है। तो you have to make sure that you have proper arrangements, especially if we are in an online session on this account also. Richa, I'm very impressed by your presentation. Again, थोड़ा सा जो जो स्पेशली आपने जो थीम लिया, और वॉर, कॉन्फ्लिक्ट एंड वुमेन, तो यू आल्सो हैव वेरी वेरी गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। और आपके केस में एक और सी है प्रेजेंटेशन का, वो है कंटेम्प्रेरी, यानी जो आजकल के हालात में गुजर रहा है। आपने जब वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, तो जो गाजा में हो रहा है, आप उसको भी आपने हवाला दिया, महाभारत की भी बात की है ना। तो ये एक आपका एक लॉन्ग शॉट व्यू दिखाता है कि यू आर नॉट ओनली जस्ट रूटेड इन योर डिसिप्लिन बट ऑल्सो हैव ए कंटेम्प्रेरी, जो आज की के माहौल के पे भी आपका आपकी नजर है। तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग दैट यू हैव। दूसरे ये कि आपके बात करने के अंदाज में पैशन था, है ना, दिल और दिमाग दोनों शामिल था। Thank you, sir. Thank you. I'm actually quite passionate about this topic and subject per se. तो अगर आप ऐसा है तो एक मेरी यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की क्लास फेलो थी यास्मीन साइकिया, प्रोफेसर यास्मीन साइकिया, Right, sir. और शी इज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री नाउ इन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, Okay. and she is a professor of South Asia. So she did a study on war, women and making of Bangladesh. Oh, wow. Oh, हाँ, that's wonderful. और Please. पूरी उसकी स्टडी इसी पे है, एंड आफ्टर दैट स्टडी शी वाज एक्चुअली अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ पीस इन दैट यूनिवर्सिटी। Oh, wow, that's lovely. और जिस तरह की उन्होंने वही जो वेमेन पर्सपेक्टिव है वो दिया है, इट इज एक्चुअली, इट जोल्ट्स यू फ्रॉम विद इन कि what kind of atrocities were committed on women during that period. There is an estimate that roughly around 2 lakh women were raped during that period of They're 9. not only there in all war narratives, literally women's bodies are battlefields, like Yes. through and through, and it's horrendous. And I would love to read more of her work. Yes, do Google. read it. I I mean, will. मतलब I was उसमें कई testimonies भी हैं of क्योंकि initially her challenge was she was not able to get hold of people or women who were ready to talk about what they had faced during that. Right. These are things which are hushed up. Yes, 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 a And, lot because of the yes. social stigma and so But on. then she persisted, and finally she was able to get hold of a lady who not only was willing to talk but was willing to even disclose her name, and she said, I want world should know what I have suffered. And then that was the starting point, and then she through her got in touch with roughly around 200 such women who had faced this atrocity.
And Right. she even contacted then the gynecologist, who after the war was over was given another brief, which was a kind of another kind of atrocity. Those ladies who had become pregnant as a Right. result of that, they Right. were forced by the nationalist government to get these Pakistani bastards out of their body. My God. But in Bangladesh, there's also the case of the Bironganas, and Yes. statues are made in their honor Yes, to kind of yes, give them yes. some respect back. That's Yeah. another point. Right. लेकिन this is also a fact. In fact, this lady said कि कभी-कभी मैंने एक दिन में 200 MTPs perform किए, My God. and No. in suboptimal conditions. Is it? My God. It's really bad. Like, that is what I say, the situation for women and And the converse part is, there was a lady in Sulhet. She saved such women who did not want to undergo this abortions, and she ensured safe delivery for their kids. So I mean, all kind of variety she was able to get. Or the best part of this study was, she went back to Pakistan as a Oh, second phase of the study. She contacted those journals and those army people who had committed those atrocities, right. and she found out that after this they had become a nervous wreck. Oh, they must. The psychological trauma on the Yes. soldiers is not at all explored as Yes. yet. That Yes. is a gap that I see in So all the- her conclusion was कि they wanted to repent, but they said कि this can be done. हमारे जैसे उन्होंने मजहब के हिसाब से फिर उसको सोचा कि आपको जब तक जिसके साथ आपने वो जुल्म नहीं किया वो आपको माफ करे ना करे, आपकी माफी ऊपर भी कबूल नहीं होगी. So because of that, they had become a nervous wreck. that So her conclusion was that women who suffered came out stronger of that suffering. But these people who were apparently strong, they became weak and nervous wreck after this. So this is available in Professor Yasmin's works. Like, I'll be able to Yes. Google it and fill Yes, it out. you should be able to Google Yasmin Saikia. Okay, She's sir. an Assamese lady. Okay, sir. Hmm. Thank you so much. This is a great reference. Thank you. एक शेर है कि ये तुमने सच कहा कुछ देर को बिस्मिल इज विक्टिम, है ना. Right. Okay. ये तुमने सच कहा कुछ देर को बिस्मिल तड़पता है, पर उसके बाद सारी जिंदगी कातिल तड़पता है. अरे वाह वाह, क्या बात है सर. सही बात. तो एक शेर में पूरा मैं उसकी जो उनकी स्टडी है उसको अगर समअप किया जाए तो वो इस शेर में. True that, sir. Absolutely. या साहिर लुधियानवी का वो शेर है कि जंग क्या मसले का हल होगी, जंग तो खुद ही एक मसला है. Right. Right. That is so बहुत profound. खूब, बहुत खूब. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट रिचा यू हैव दिस इंटरेस्ट. और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर एकेडमिक जर्नी. Yes. Bringing your head and emotions both in the subject. The literature has to be a vehicle to sort of address this in some ways or another, I feel. Thank you so much. चलिए सर, तो आई थिंक कुछ ज्यादा डिस्कशन लंबा हो गया, तो लेट अस लिसन टू कीर्ति नाउ. कीर्ति, रवि प्रताप, पूनम वाजपेयी एंड अक्षय कुमार. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल. आज हम लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में समझेंगे. लर्निंग जैसा कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं. एज वी आर स्टूडेंट एंड एज वी आर ऑल टीचर, तो ये हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है कि हम सीखने के कुछ नियमों को अच्छी तरह से समझें, जिससे हम टीचिंग भी अच्छे से कर सकें और खुद को भी अच्छे से सिखा सकें. तो लॉज ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय थॉर्नडाइक. उन्होंने 3 नियम दिए. उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए. उसमें जो पहला नियम है वो लॉज ऑफ रेडीनेस है. लॉज ऑफ रेडीनेस का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लर्नर या कोई भी बच्चा जब तक सीखने के लिए रेडी नहीं है तो आप उससे सिखा नहीं सकते. और रेडी होने के 4 और भी स्तर हैं. लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तत्परता का नियम. इसमें जो पहला स्तर है वो है कि बच्चा फिजिकली रेडी होना चाहिए. फिजिकली रेडी का मतलब ये है कि बच्चा अगर बीमार है
या उससे चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहले फिजिकली रेडी होना चाहिए। दूसरा जो स्तर है वो कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए। कॉग्निटिवली रेडी का मतलब ये है कि बच्चा मेंटली रेडी होना चाहिए। कहने का मतलब कि बच्चा अगर फिजिकली भी फिट है, लेकिन अगर वो मेंटली रेडी नहीं है, मतलब कि आप क्लास 5th के बच्चे को इंटर की मैथ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बच्चा अगर फिजिकली भी फिट है लेकिन अगर कॉग्निटिवली फिट नहीं है, रेडी नहीं है, तो हम उसे नहीं सिखा सकते हैं। जो तीसरा जो लेवल आता है वो होता है सोशल रेडीनेस। सोशली रेडीनेस का मतलब ये है कि बच्चा अगर फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी रेडी है, लेकिन अगर सोशली रेडी नहीं है, मतलब अगर क्लास में वो आइसोलेटेड फील करता है, या फिर बच्चे को किसी भी वजह से टीज किया जा रहा है, तो वो सीखने के लिए रेडी नहीं होता है। चौथा जो लेवल आता है वो है इमोशनली रेडीनेस। मतलब कि अगर बच्चा फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी उसके फ्रेंड्स वगैरह ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर उसकी फैमिली में अगर वो इमोशनली रेडी नहीं है, मीन्स कि अगर उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स के डिवोर्स हो गया है या फिर किसी उसके लविंग वंस का डेथ हो गई है, तो वो फिर सीखने के लिए रेडी नहीं है, मीन्स कि वो मोटिवेटेड नहीं है। टाइम इज ओवर। इन चारों लेवल पे बच्चे को रेडी होना बहुत जरूरी है। तो ये पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस का। दूसरा जो नियम है वो लॉ ऑफ प्रैक्टिस का है। I'm sorry, Kirti, your time is over now. ओके सर, ओके सर। Okay. And now Ravi Pratap. जी सर, ओके। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रवि प्रताप जी, आप नजर नहीं आ रहे हैं। Switch on your video and put your electronic hand down. आ रहा है सर? नहीं, अभी नहीं। ऐसा करिए, we will come back to you. In the meanwhile, you can sort out these technical glitches. Poonam Bajpayee, are you there? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। पूनम मैम, आप भी? हाँ, यस, नाउ यू कैन स्टार्ट। रवि हेलो प्रताप जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर को अपने आप को। पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग सर। आज मैं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के हेक्सर ओलिन मॉडल के बारे में बताने जा रही हूँ। इन्होंने एक क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना की, जो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि हम उन देशों के साथ व्यापार करें जिन देशों के साथ हमारा आयात निर्यात अच्छे से हो सके। यानी जो देश पूंजी प्रधान देश है, यानी जिनमें पूंजी की अधिकता होती है, वो देश पूंजी निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करें। और जो श्रम प्रधान देश हैं, जिनमें श्रम की अधिकता है और वो कार्य में अपने कुशल हैं, दक्ष हैं, मतलब कम कीमत में श्रम निर्मित वस्तुओं को बना सकते हैं, वो श्रम का उत्पादन करें। अब हम दोनों देश आपस में व्यापार कैसे कर सकते हैं? पूंजी प्रधान वाले देश हो सकता है पूंजी निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करें, पर श्रम प्रधान देश में उन चीजों की जरूरत ना हो। तो और या श्रम प्रधान देश जिन चीजों का अगर उत्पादन करते हैं, मतलब श्रम प्रधान मतलब जिन देशों में श्रम की अधिकता होती है और वो किसी चीज को कम कीमत में बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी गुणवत्ता के हिसाब से वो अच्छा बना लेते हैं। और पूंजी प्रधान देश ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कोई चीज अच्छी बनाते हैं सस्ती कीमत पर। तो उनके बारे में हम लोगों को ये करना है, व्यापार हम ऐसा करें कि जो पूंजी प्रधान देश हैं वो कोई चीज बनाते हैं और हमारे देश के लिए अगर वो नुकसानदायक है या वो ई कचरा फैलाते हैं या किसी तरीके से हमारे जीवन में वो कुछ दुष्प्रभाव डालते हैं, तो हमको उनकी क्वालिटी के अनुसार बताना होगा कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। और श्रम प्रधान देश जो है वो श्रम निर्मित वस्तुओं का अगर निर्मित करते हैं तो उनकी गुणवत्ता के बारे में सबके, मतलब ग्लोबलाइजेशन है तो बताना जरूरी हो जाता है कि हम इस चीजों को इस आधार पर बना रहे हैं। अब हो सकता है कि श्रम प्रधान देश जो चीज बना रहे हैं उनकी कीमत कुछ ज्यादा हो और पूंजी प्रधान जो चीज बना रहे हैं उनकी कीमत हो सकती है कुछ कम हो। तो पर हम निर्यात उन दोनों देशों के बीच जो व्यापार करेंगे उसको इस आधार पर करेंगे कि हमारे जो भविष्य में जो चीजों की ज्यादा
इम्पोर्टेंस है, जैसे इन्वायरमेंट है या हमारी लाइफ है या हमारे एजुकेशन सिस्टम है या हमारी आगे की पीढ़ी है, वो कुछ उस आधार पर हम सामान्य संतुलन बना करके व्यापार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम जो चीज की हमें जरूरत तत्कालीन मुद्दा जो है मतलब वर्तमान में जो ओके सर, थैंक यू। हम इतना बस बताना चाह रहे थे कि व्यापार करने के क्या नियम और क्या इससे लाभ और क्या हानि को देखकर भावी पीढ़ी आगे व्यापार के लिए अग्रसर हो। थैंक यू सर। थैंक यू पूनम। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी अपने आप को, हाँ एक तो म्यूट हैं आप अभी, चलिए हूँ सर मैं। हाँ आप नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड जो है ये बाधा पैदा कर रहा है। डाउन कर रहे हैं सर, डाउन कर रहे हैं। अब ठीक है सर? यस। तो सभी संप्रेषित पार्टिसिपेंट्स और आदरणीय सर जी को जो है मेरा अभिवादन। मैं अक्षय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, श्री बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी, संबद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज हमारे प्रस्तुतिकरण का विषय मीराबाई के काव्य चेतना में स्त्री विमर्श पर है। जैसा कि हिंदी साहित्य की विविध विधागत जो पक्ष हैं उसमें विमर्शों की दुनिया को टटोलते हैं हम। तो जहाँ दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, जेंडर विमर्श आदि आदि विमर्शों पे एक चर्चा होती है, उसको एक उदात्तता मिली हुई है। वहीं स्त्री विमर्श भी अपनी विशेष परिदृश्य और पटल को लेकर के चलती है, लेकिन इसका भी एक पूर्वगामी इतिहास रहा है और अद्यतन भी प्रभावोन्नति दिखती है। पूर्वगामी में जहाँ वैदिक युग से लेकर के हम चलते हैं तो अपाला, घोषा, गार्गी ये सब हैं। और फिर काल अनुक्रम में देखता हूँ तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, नई हिंदी से होते हुए इधर भक्ति काल में आते हैं, तब मीराबाई जी का व्यक्तित्व कृतित्व उभर करके आता है। मीराबाई जहाँ भक्ति साधना से अपने प्रेम स्नेह के संसर्गों को जोड़ती हैं, वहीं जो है वह जो है स्त्री अस्मिता अस्तित्व को जो है समाज के तमाम झंझावातों, अंतर विरोधों से लड़ते हुए अपने आप को स्त्री अस्तित्व अस्मिता को कैसे बचा के रखें और कैसे उसमें अपने आप को स्थैर्य प्रदान करें, वह भी दिखाई देता है। उन्हीं का प्रभाव है सर कि अद्यतन जो कालांतर में जो निकल करके आती है चीजें कि स्त्री शिक्षा, समाज और हर पायदान पे किस रूप में अपने आप को मुखर करती हैं। और लेखन के क्षेत्र में भी मैं देखता हूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी और शिवानी, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा, महादेवी वर्मा जी, ये सब जो है निकल करके आती हैं और अपने आप को इस रूप में स्थापित करती हैं कि समाज को एक नई चेतना, नई दिशा प्रदान करती हैं। और मीरा जी का ही प्रभाव है कि आज आधुनिक जो मीरा के रूप में महादेवी वर्मा जी आती हैं वो दिखाई देती है। ठीक है, अभिवादन। थैंक यू। रवि प्रताप जी, अब आप तैयार हैं? जी तैयार हैं सर। सो रहे हैं? हाँ आप नहीं, आप नजर अभी भी नहीं आ रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए। आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? जी सर, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आ नहीं रहा है। हाँ आप नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, जब तक फिर एसबी सिंह साहब को सुनते हैं। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? आप प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ तो प्लीज स्टार्ट। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई एम अनिल कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ अंगिका, तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। और हमारा रिसर्च का विषय है
लोक गाथा में समाज। और मैं इसके लिए जो है सबसे पहले अपने समाज में जाता हूँ और जो बूढ़े पुराने लोग हैं उनसे मिलता हूँ और जो क्षेत्र की लोक गाथा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ और फिर उसका अध्ययन करता हूँ। तो मैं आज लोक गाथा के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। लोक गाथा जो है साहित्य की एक ऐसी विद्या होती है जो समाज में घटे किसी विशेष घटना को छंदबद्ध करके लोग गाते हैं। लेकिन एक प्रकार से ये कहा जाए कि जो पद्यात्मक गाथाएं होती है उसे ही लोक गाथा कहते हैं। और दुनिया के अलग अलग देशों में, विभिन्न भिन्न प्रकार के देशों में और अपने देश के भी कई भिन्न भिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर जैसे इंग्लैंड और फ्रांस में बैलेट कहते हैं, डेनमार्क में फोकवाइजर कहा जाता है, और भारत के ही किसी विशेष अलग अलग राज्यों की बात करें तो गुजराती में कथा गीत, तमिल में करे पाडल, असमिया में मालिका और भोजपुरी मराठी वगैरह में पावड़ा के नाम से भी जाना जाता है। लोक गाथा चूंकि समाज में घटी विशिष्ट घटना को लोग कथा के रूप में, गीत के रूप में गाते हैं, इसलिए इसकी रचयिता अज्ञात होते हैं, इसके रचयिता का पता नहीं होता है। और जो समाज में लोग घटित घटना को सुनाते हैं तो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुंचाते रहते हैं, ये मौखिक रूप में होता है। और इसलिए समय के साथ ही समाज की एक संपत्ति हो जाती है। और लोग समय, चूंकि मौखिक रूप में होता है, लिखित रूप में नहीं होता है, तो समय के साथ साथ लोग इसमें मनोरंजन के हिसाब से कुछ छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ देते हैं और फिर इसको मनोरंजक बना लेते हैं। और समाज जो लोक गाथा है, तो लोक गाथा में जो हमारे समाज के अशिक्षित वर्गों का भी योगदान रहता है, इसलिए इसमें कहीं भी अश्लीलता की कोई जगह नहीं होती है। इसमें प्रेम रस, श्रृंगार रस, विभक्त रस, हर तरह के रस की से ये परिपूर्ण होता है। अगर हम इसमें देखें लोक गाथा की विशेषता के बारे में देखें तो चूंकि ये प्रेम रस से भरा होता है, किसी विभक्त रस से भरा होता है, तो प्रेम का अभिन्न खुद मिलना स्वाभाविक हो जाता है इसमें। जैसे भाई बहन का प्रेम हो गया, पति पत्नी का प्रेम हो गया। कहीं लोक गाथा में देखने के लिए मिलेगा कि बहन जो है अपने भाई की कुशलता के लिए विशेष रूप से घूम रही है, मंदिर जा रही है, पूजा पाठ कर रही है। तो और इस तरह से वो जो है वो एक नायिका के रूप में लोक गाथा में यश पाती दिखाई देती है। कोई माँ जो है गरीबी में अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, पति पत्नी का दिव्य स्वरूप मिलता है, इसलिए अश्लीलता का कहीं गंध भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोक कथाएं ऐसी होती है जो जातीय पात्रों पर आधारित होती है। जैसे निम्न जाति के लोग जो है कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य कर जाते हैं तो उसके आधार पर भी लोग उसमें लोक गाथा बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई जादू टोना वगैरह का जान रहा है या समाज के लिए लड़ रहा है, कोई शेर है उसको छोटा सा करके पैकेट में रख लिया, कहीं जंगल से जा रहे हैं, संकट आने पर हम उसे कर लिया, कुछ विशेष कार्य कर लिया, जैसे हवा में उड़ गया, कहीं तेजी से जाना है, तो इस तरह का जो है उसमें लोक गाथा की चित्रण देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी विशेषता होती है लोक गाथा की कि इसमें उत्सुकता बढ़ती है कि आगे घटनाओं में क्या हो, जानने की भावनाएं बढ़ती है। क्योंकि संगीत में होता है तो लोगों को इसमें रुचि होती है, और लोक गाथा के अंत में मंगल कामना की भावनाएं हैं। मंगल कामना जो व्यष्टि मंगल होता है, पूरे समाज के मंगल होता है, लोक मंगल की भावनाएं इसमें देखने के लिए मिलती है। लोक गाथा का वर्गीकरण भी करना थोड़ा असंभव होता है क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग तरह की लोक गाथाएं मिलती है। फिर भी अध्ययन के हिसाब से जो है हम लोग इसमें कर सकते हैं। सामाजिक लोक गाथा, उपदेशात्मक, प्रेम प्रधान लोक गाथा हो गया। तो प्रेम प्रधान लोक गाथा ज्यादातर मिलता है देखने के लिए, तो इसमें उदाहरण स्वरूप मिलते हैं सदावृत रानी सारंगा की लोक गाथा है, फिर राधा की प्रेम कथा है। I am already said 2 times. एंड सर मैं जहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ सर, भागलपुर क्षेत्र से, तो अंग क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भी एक प्रेम प्रधान लोक गाथा है, इसका नाम है नटुआ दयाल। इसमें क्या होता है कि जो नायक होता है, Your time is already much earlier. मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। धन्यवाद सर। एक शेर पहले सुना दें साहब हैं, ये हम लोग की एज टीचर्स उस पर बहुत एप्लीकेबल है कि जमाना कैसी कैसी जिंदा आवाजों से रोशन था,
मगर हम हैं कि बस अपनी सदा अच्छी लगी हमको। क्या बात है सर, क्या बात है। तो टीचर को जो है वो अपनी सदा सबसे अच्छी लगती है। तो चलिए दीपमाला मिश्रा आपको सुन लेते हैं। नमस्ते सर। एक मिनट दीपमाला मैम, मुझे लगता है किसी एक पार्टिसिपेंट के लेवल पे बहुत बैकग्राउंड शोर आ रहा है, म्यूट नहीं है शायद वो। अब ठीक है ना? यस दीपमाला। नमस्ते सर, सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपमाला मिश्रा है। मैं डीएस कॉलेज अलीगढ़ के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है आंगन का पंछी, उस पर चर्चा करेंगे। हम सबको पता ही है कि गौरैया राष्ट्रीय पक्षी है और उसके संरक्षण के लिए 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के साहित्य में आधुनिकता और परंपरा, लोक और शास्त्र, मनुष्य और परिवेश में अद्भुत सामंजस्य और समन्वय देखने को मिलता है। चीन में गौरैया के खिलाफ गौरैया को मारने के लिए सामूहिक अभियान छिड़ा था। इसकी अखबारी खबर पर विद्यानिवास मिश्र जी का मन बहुत व्यथित हो जाता है। उसी पर यह निबंध आधारित है कि चीन में ये कौन सा अभियान चल गया है कि झुंड के झुंड गौरैया को बंदूक से दाग कर हम लोग खत्म कर रहे हैं। क्या हमारी ऐसी सोच जो है मनुष्य की धरती पर संप्रभुता से बहुत ज्यादा ग्रस्त नहीं है? क्या सृष्टि केवल मनुष्य की ही है? सृष्टि में और जीवों का और जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कोई योगदान नहीं है? मनुष्य की ऐसी सोच जो है बहुत ही स्वार्थी है, उपयोगितावादी है, और ये सोच अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो घर में मौजूद मनुष्यों पर भी ये सोच लग सकती है और वो हमारे अस्तित्व को समाप्त भी कर सकती है। इसलिए विद्यानिवास मिश्र जी भारतीय चिंतन परंपरा के विश्वास पर अपना तर्क देते हैं कि प्रकृति हमारे अधीन नहीं है बल्कि हम प्रकृति के अधीन हैं। पर्यावरण, प्रकृति और परिवेश के प्रति कृतज्ञता ही हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसमें तड़क भड़क के लिए कोई स्थान नहीं है और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बिना किसी अहंकार और अभिमान की तीव्रता के सहज भाव से समर्पित रहें, मनुष्य बनकर ही रहें और प्रकृति की सृष्टि के जो भी अव्यय हैं सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के साथ साथ हम विकास भी करें, मनुष्य भी बने रहें और प्रकृति के जो भी अव्यय हैं, पर्यावरण, परिवेश की रक्षा भी करते रहें। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और उसके बाद विकास करना दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। सर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। वेरी गुड दीपमाला मैम। नाउ रवि प्रताप जी, देखिए एक बार जी सर, आप सो रहे हैं सर? हाँ, यस, नाउ यू आर विजिबल। Very good. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Myself, Dr. Ravi Pratap Singh Chauhan, Assistant Professor Chemistry from Nehru College, Chhabra-Mahu, Kanpur University. I discusses with you periodic table, mainly D group element. As we know that there are 7 period and 18 group in periodic table. First 2 group is S block element known as alkali metal and alkaline earth metal, and 13 to 18 group known as P block element. Mainly 18 group is known as inert gas. There are 6 inert gas are also called noble gas. हिंदी में अक्रिय गैसें कहते हैं. Name is helium, neon, krypton, argon, xenon, radon. Atomic number is 2, 10, 18, 36, 54 and 86. And element which present in the group 3 to 12 is known as D block element. D block element are those elements in which last electron enter in D block. D block is also called transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमण तत्व. संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी उपांतिम अंतिम से पहले वाली कक्षा अपूर्ण होती है, अर्थात डी ब्लॉक जो है अपूर्ण होती है. इनका सामान्य जनरल फॉर्मूला होता है n-1 D 1 to 10, क्योंकि डी में
10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²। तो इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, संक्रमण तत्वों की, वो जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व कहलाने का कारण क्या होता है, डी ब्लॉक में आने के बाद ये हायर और लोअर एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं जिनके नाम होते हैं T2Y और EZ। T2Y और EZ हायर लोअर एनर्जी लेवल में। पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर जो है 2 सीरीज होती हैं जिन्हें 14 एलिमेंट कैल 4F जिन्हें लेंथेनाइट कहते हैं, एंड 14 एलिमेंट जिन्हें एक्टिनाइट कहते हैं। एक्टिनाइट आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, यूरेनियम, थोरियम, जो परमाणु परीक्षण में काम आते हैं। मेनली जो है एलिमेंट जैसे फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट जो है कैल्शियम है, पोटेशियम है, ह्यूमन बॉडी में भी आते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में आयरन है 30 सेकंड में इंक्लूड कर रहा हूँ। आयरन है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के साथ इनर्ट गैस का जब उनके आउटर फील्ड कंप्लीट होते हैं तो अदर एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उन पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर्टी आती है जिनको आयन कहते हैं। थैंक यू सर। Thank you. Now I think let me analyze the presentations, and afterwards now we will have a short break. So सर एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए 2 लाइनें आई हैं दिमाग में, अगर रह जाए तो कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा इसे रिजर्व रखिए और सेकंड सेशन में कीजिए, क्योंकि अभी इसको सेशन को खत्म करने में हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और 3 मिनट में मुझे बट वी विल डेफिनेटली आपके लिए आधा मिनट लगेगा। वी विल गेट बैक टू यू इन द सेकंड सेशन, और उसको अच्छे से और इस बीच में प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, आई थिंक वी हैव लिसन टू 5 स्पीकर्स इन दिस राउंड। पूनम वाजपेयी से हमने स्टार्ट किया। पूनम मैम, आपका बहुत अच्छा एक तो सब्जेक्ट की भी अंडरस्टैंडिंग है और कमांड आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी है। बहुत आपने ल्यूसिड फ्लूइड अंदाज में अपनी बातें कही, तो बहुत इट वाज ए गुड फ्लो ऑफ द लैंग्वेज। मुझे लगता है कि अब आपका नेक्स्ट चैलेंज जो है वो यही है कि हाउ कैन यू नो कनेक्ट बेटर विद द ऑडियंस, है ना। ऑडियंस को, जैसे मैंने कल कहा था कि शीरा लगाना है। एक्चुअली अच्छा टीचर होता है, उसका काम होता है शीरा ऐसा लगा दे कि मक्खी खुद आगे चिपक जाए। तो अपनी बात को और कैसे इंटरेस्टिंग वे में आप पेश कर सकती हैं, ये आपके लिए मेजर चैलेंज है। अक्षय कुमार जी, आपने भी बहुत अच्छा स्त्री विमर्श पे बात की और मीरा के कॉन्टेक्स्ट में आपने, मगर मुझे लगता है कि 2 चीजें आप और गौर कर सकते हैं। एक तो ये कि थोड़ा आपने फैला दिया बहुत ज्यादा टॉपिक को और समेटने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो अगर ये जजमेंट और डेवलप हो जाए कि भाई कितना ए स्पीकर शुड नॉट एम फॉर द स्काई, 2.5 मिनट या 3 मिनट के, तो ये जजमेंट करना कि इट शुड नॉट बी टू मच और टू लिटिल, दोनों होना चाहिए, है ना। तो आपका थोड़ा ज्यादा शायद फैल गया। और पूनम मैम, आप भी थोड़ा और कम कर सकती हैं कंटेंट को, तो शायद देखिए, मैं कल भी ये बात कह रहा था कि टीचर का काम तेल भरना नहीं है दिए में, बल्कि दिया जलाना है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एज टीचर्स ज्ञान बांटने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आज सब बता देना है, ऐसा ना हो कि कोई प्यासा चला जाए। देखिए, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम सिर्फ शौक पैदा करना है दूसरे के। अल्टीमेटली इट विल बी हिज और हर जर्नी विच ही वुड लॉन्च। तो मुझे लगता है थोड़ा और शायद अक्षय जी, आपकी भाषा बहुत अच्छी सुंदर है, और अगर सरल हो जाए तो शायद और अच्छी तरह से आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सर, प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल। अनिल कुमार जी, आपका भी वही, देखिए मुझे लगता है कि खास तौर से देखिए टीचर के साथ तब प्रॉब्लम आती है जब वो सब्जेक्ट के बारे में बहुत जानता है ना। तब अपने ख्यालात को मुरतब करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको एक सीक्वेंस में ढालना और ये तय करना कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है ना। इसको हम मॉम प्लान कहते हैं। मॉम प्लान मीन्स कि व्हाट आई मस्ट से, व्हाट आई ऑट टू से एंड व्हाट आई मे से, है ना। तो ये जजमेंट हम तभी कर पाते हैं कि
खास तौर से अगर शॉर्ट प्रेजेंटेशन है तो हमारी जब स्क्रिप्ट तैयार होती है तो वी नो एग्जैक्टली विच ऑफ द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर। वरना क्या होता है कि हमारे पास बहुत से आइडियाज दे आर बबलिंग इन आवर माइंड, और स्टेज पे आने के बाद लगता है कि ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, कुछ पकड़ में आते हैं, कुछ उस सीक्वेंस में पकड़ में नहीं आते, है ना, जिसमें हम चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि और खास तौर से अगर आपको 3 मिनट 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है तो स्पेसिफिक प्रिपरेशन हेल्प्स डज वंडर टू आवर परफॉर्मेंस। तो मुझे भी लगता है कि आपके पास बहुत कंटेंट था, मवाद बहुत था, रिच कंटेंट था, लेकिन थोड़ा वो फैल गया ज़्यादा। उसको समेटने के लिए अगर और एफर्ट होती तो शायद आपका प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव होता। तो हमारी सोनल मैम को बड़ी परेशानी हुई आपको रोकने में, है ना। तो टीचर एक बार जब शुरू हो जाए तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। दीपमाला का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और आपने एक वो गौरैया के सिलसिले में बड़ी मार्मिक बात कही, बड़ा मतलब हृदय को लगने वाली से कहते हैं। और यही लिटरेचर की खूबी होती है कि आदमी में एक फीलिंग्स को जगा दे, है ना। तो आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। आई एम ओवरऑल वेरी इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थोड़ा इसमें खास तौर से आप कंटेम्प्रेरी अगर और पर्सपेक्टिव ले आती। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो गौरैया संरक्षण पे काम कर रहे हैं, तो लिटरेचर का आपने हवाला दिया, लेकिन अगर उन एक्टिविस्ट्स का भी आप हवाला देंगी तो और अच्छा लगेगा, और क्या क्या एफर्ट्स इसमें वो एक्टिविस्ट के जरिए हो रही हैं, तो बहुत देन इट वुड बी इवन मोर काइंड ऑफ रिच एंड इट विल गिव अ पर्सपेक्टिव। जैसे हमने अभी महाभारत के उनका जो वॉर पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन सुना, तो शी वाज अवेयर ऑफ द प्रेजेंट डे एफर्ट्स दैट पीपल आर मेकिंग फॉर। हालांकि आपने जो चाइना की मिसाल दी वो भी बड़ी शॉकिंग थी, लेकिन उसके बरक्स तो हिंदुस्तान में लोग एफर्ट कर रहे हैं गौरैया संरक्षण पे। उनको की अगर आपको और जानकारी हो उनकी एफर्ट की तो शायद आपका और ज्यादा वेटी कंटेंट हो जाएगा। अनिल कुमार जी, नहीं सॉरी, रवि प्रताप साहब, आपने केमिस्ट्री के बारे में अपनी बातें रखी, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत रिच था, और आपने बहुत ज्यादा मवाद जमा कर लिया था अपने कंटेंट, अपने 2.5 मिनट के हिसाब से। थोड़ा मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट आपके लिए चैलेंज ये होगा कि अगर आप इस कंटेंट को तकरीबन 30% कम करें, और थोड़ा लोगों में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड शौक जगा दें या उनकी क्यूरियोसिटी जगा दें, जिससे वो और उसके बारे में जाने, तो शायद और अच्छा होगा। थोड़ा लैंग्वेज पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लैंग्वेज स्लिप्स, जैसे मुझको काम खास तौर से इससे बड़ा ये लगता है कि हम लोग माई सेल्फ सो एंड सो, है ना। तो माई सेल्फ अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें, या आई डिस्कसेस विद यू दिस, तो देवर लैंग्वेज स्लिप्स हियर एंड देयर। आप सिंपली कहिए आई एम अनिल कुमार और आई एम रवि प्रताप, है ना। तो माई सेल्फ मुझे लगता, तो एक जो सी के टर्म्स में अगर देखें, करेक्ट यूज ऑफ द लैंग्वेज, correctness is a very important dimension of effective communication. So overall, I'm sorry, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रही इसलिए थोड़ा सा सुन नहीं पाए। नहीं, लैंग्वेज का इशू नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, तो लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दें, और कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट से मतलब हमने कहीं सेंटेंस पढ़ा था कि when we get a hammer in the hand, everything looks worth striking। तो लगता है कि आप कुछ जान लिया है तो उससे हर एक की चांदमारी करें, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसमें शौक पैदा करें, ये जिससे वो खुद उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो लेकिन हम जो है घर भरने के चक्कर में हो जाते हैं। शौक पैदा करना वो असली टीचर का काम है ना। और जानकारी की तो कोई इंतहा नहीं है भाई। हम लोग जानना शुरू करते हैं तब हमें अपनी इग्नोरेंस का पता चलता है। चलिए, विल गेट बैक टू यू, और आप जो आपकी पंक्तियां हैं वो हम उसी से स्टार्ट करेंगे अगला सेशन। ओके, आप उसे तैयारी करके रखिए। तो वी विल अगेन असेंबल एट 11। ओके सर,
Okay, sir. थैंक यू मेरे बारे में मैंने Thank आपको you, sir. थैंक्स सर Okay. थैंक्स सर Sorry. सर Yes, we missed Kirti. She was the first one. थैंक्स सर आपने जो देखिए लर्निंग के उसूल बताए, देखिए आपका भी वही हुआ शायद लगा है कि आपकी बात मतलब जब असली महाभारत की कहानी शुरू हुई तब आपका वक्त खत्म हो गया, है ना। तो एक ही उसूल रेडिनेस के बारे में आपने इतना तफसील से बता दिया कि बाकी दो उसूल जो है वो बेचारे बैकग्राउंड में चले गए। तो ये जजमेंट करना कि मुझे किस इशू पे कितना कहना है ना, तो आप अपना स्कोप लिमिट कर देती हैं। आप कहती हैं कि मैं लर्निंग के जो 3 उसूल हैं उसमें एक उसूल के बारे में अपना तफसील से बयान करूंगी, तो दैट वुड हैव बीन अ वंडरफुल। तो देखिए अच्छा टीचर वो होता है, दाग का एक शेर है कि हाले दिल कब अदा हुआ पूरा, कुछ कहा भी है कुछ रहा भी है ना। तो जब आप स्टेज से जाएं तो लोगों में ये एहसास हो कि अभी कुछ और कहते, ये ना हो कि ये कब जाएंगे, है ना। तो हम लोग इस जजमेंट को अगर और करना सीख लें, लेकिन आपके लैंग्वेज बहुत बेस अच्छा है, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है, बस आपको ये जजमेंट और डेवलप करना होगा कि कितना कहना है ना, और क्या नहीं कहना है ना। But otherwise good performance. So let us meet again at 11 sharp. 11 we will meet. Heartily thanks sir, heartily thanks. Thank you sir. Okay sir, thanks sir. Okay, sir. Thank you. Thank you sir. थैंक यू सर Thank you sir. थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर सर Thank you, sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir. धर्मबाद जी हैं कि चले गए?